chapter we are going to discuss the graph of the function. So we are going to with the basic graph, the first graph of the constant function. The first graph is here, that is constant function. So first we are going to draw this. What is the graph of constant function? Let's suppose here y is equals to f of x is equals to k. This k is a real number. This k is a real number. So let's suppose you think k is a 3. k कितना लिया हमने? 3 लिया है. Now if k is equals to 3, so what it means, if you draw this graph, then you have to go 3 place above from the center of the from the origin 1 2 3 and 3 place above this graph you will draw a parallel line to the x-axis. This is the graph of, we are going to draw a parallel line to the x-axis. This is the graph of y is equals to 3, or we can say the graph of f of x is equals to 3. This is the graph of this function. Okay, so if you want to draw the graph of y is equals to f of x, if you want to draw the graph of this y is equals to f of x, then what you will do, you will just place a parallel line parallel to the x-axis. Okay, this is the origin here, this is the x-axis, this is the y-axis. So this is the graph of y is equals to k. So you can draw any graph like this: y is equals to 2, y is equals to 3, y is equals to 5, y is equals to -5 है तो below the origin you will draw a parallel line to the x-axis and so on. तो आप किसी भी रियल नंबर के लिए एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो. दैट शुड बी द पैरेलल टू द एक्सिस. उसे एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए. नाउ यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो अब क्वेश्चन ये होता है कि x की हमारी डिफरेंट वैल्यू पे हमें y की क्या क्या डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी. यानी हम डोमेन की बात कर रहे हैं. डोमेन मीन्स एक्स्ट्रा वैल्यू. डोमेन मीन्स हम डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे फ्यूचर में, लेकिन फिलहाल अभी आप समझो डोमेन मीन x की कौन सी अलाउड वैल्यू है. यहाँ पे x की हम कौन सी वैल्यू है यहाँ पे पुट कर सकते हैं. फिलहाल आपको डोमेन इतना समझना है, x की कौन सी वैल्यू अलाउड है. नाउ इफ यू पुट x इज इक्वल्स टू 1 हियर या x इज इक्वल्स टू 0 हियर, then जैसे let's suppose in this example if you put x is equals to 0, तो f of 0 the answer will always be 3 because the in the right hand side there is no x, so x not gonna change this value. This will always come 3. ये हमेशा कितना आएगा? 3 आएगा. आपने 1 पुट किया है, you will also get 3. if you put 2 here you will get 3 and so on. आप कोई सा वैल्यू पुट करोगे you will always get a 3 here. तो यहाँ से आपको क्या पता चला? यहाँ से आपको पता चला कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स का आप कोई सा भी रियल नंबर पुट करो. रियल नंबर मतलब -∞ टू +∞, यू पुट एनी वैल्यू हियर यू विल ऑलवेज गेट अ के. आपका हमेशा क्या मिलेगा? के. यानी कि एक्स की हर वैल्यू अलाउड है. ऑफकोर्स ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स आर अलाउड हियर. सो द डोमेन मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स. डोमेन ऑफ दिस फंक्शन यानी कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज हियर -∞ to ∞, or we can replace this by, or we can say that this is a real number. Okay, what is the range of this function? तो रेंज, अब आप देखो रेंज मतलब होता है y का वैल्यू. y का कौन सा वैल्यू अलाउड आया है यहाँ पे, या y का कौन सा वैल्यू हमें ऑब्टेन हुआ है. what value of y we obtain after putting the value of domain of this function. तो आप देखो x के for any value of x you are always getting a constant value that is k. तो हमेशा y का वैल्यू क्या आ रहा है? फिक्स वैल्यू आ रहा है y का, that is k. तो जैसे इस वाले केस में, दूसरे ग्राफ में y का हमेशा कितना वैल्यू ऑब्टेन हुआ है? 3 वैल्यू ऑब्टेन हुआ है. x की हर वैल्यू पे हमेशा y का एक वैल्यू ऑब्टेन हुआ है विच इज 3. तो वही क्या होगा? केवल रेंज में उतनी वैल्यू आएगी. रेंज मतलब y ने कौन सी वैल्यू ऑब्टेन की है. देयर ओनली वन वैल्यू is obtained here, that is k. तो so the range is k, so we will put this in a curly braces. curly braces इसलिए यूज होता है if we want to put only one value,
तो सो वी यूज द कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस ये बताता है कि यहाँ पे केवल 8 वैल्यू है, या जितने एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर रिटन इन द कर्ली ब्रेसेस ओनली दैट दोज एलिमेंट आर प्रेजेंट इन दैट सेट। यहाँ पे मैंने के लिखा है तो यहाँ पे केवल एक ही वैल्यू है, देयर आर ओनली वन वैल्यूज विच इज प्रेजेंट हियर। तो सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज के, केवल इसका रेंज कितना है, के के बराबर होगा, जैसे इस केस में 3 है। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है आपका, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, सेकंड ग्राफ इज आइडेंटिटी फंक्शन। तो सेकंड ग्राफ आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखो नाम से जैसे पता चल रहा है, दिस इज द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स मतलब सेम वैल्यू। इफ यू पुट x is equals to 1 you will get y is equals to 1. If you put x is equals to 2 you will get y is equals to 2. If you put x is equals to 3 then you will get y is equals to 3. Y is equals to 3. So the identity means मतलब same value, you will get the same value. So what is the if definition wise अगर हम बात करें यहाँ पे y is equals to f of x and f of x is equals to x, तो y is equals to x मतलब हमें y is equals to x का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। यदि आपने x पुट 1 पुट किया तो y भी 1 आएगा, 2 पुट किया तो आफ्टर यू आर पुटिंग 2 हियर देन यू विल गेट y is equals to 2। तो आपको y भी कितना मिलता है, 2 मिलता है। नाउ तो दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन। तो अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, आपको ये बेसिक ग्राफ है, ये सारे ग्राफ आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। कैलकुलस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्राफ आपको आने चाहिए। तो y इज इक्वल टू x का जो ग्राफ होता है दिस इज समथिंग लाइक दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विच इज मेकिंग a 45 degree angle in anti-clockwise direction from the positive direction of x-axis. This is a straight line. Y is equals to x is a straight line. This is the equation of a line which is making an angle of a 45 degree with the positive direction of x-axis. ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ओके, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। व्हाट इज द डोमेन हियर, व्हाट इज द अलाउड वैल्यू ऑफ x हियर। तो आप जानते हो इसी को हम क्या देते हैं, डोमेन। तो सो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज r, रियल नंबर। वाई रियल नंबर, आप यहाँ पे x का हर वैल्यू अलाउड है, कोई सा वैल्यू अलाउड पुट करो यहाँ पे, ये हमेशा डिफाइन होगा। तो हमेशा डिफाइन है, दैट मीन्स द अलाउड वैल्यू ऑल रियल नंबर आर अलाउड हियर। सो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज r। व्हाट इज द रेंज हियर, तो जो रेंज है, जो डोमेन है वही तो रेंज होगा, वाई बिकॉज वाई इज इक्वल टू एक्स, जो वैल्यू एक्स की होगी वही वैल्यू तो वाई की होगी। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर और रियल नंबर। ओके, अब एक बात और ध्यान से कंसिडर किया, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप मीन्स एनी लाइन विच इज मेकिंग एन एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कोई भी लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है, अगर हम उसका 10 ले लें तो वो क्या हो जाता है, स्लोप ऑफ दिस लाइन। द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 1045, द 1045 इज 1। तो 1045 इज 1 हियर, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 1। ओके, तो डोमेन क्या हो गया इसका, रियल नंबर। रेंज इज आल्सो अ रियल नंबर, रेंज भी इसका कितना हो गया, आपका रियल नंबर हो गया है। नाउ डोमेन एंड रेंज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया इसका। अब इसके बाद जो आ जाते हैं हम यहाँ पे आइडेंटिटी के बाद है, दैट इज अ मॉडुलस फंक्शन। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज मॉडुलस। ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। तो फर्स्ट, व्हाट इज द मॉडुलस फंक्शन। देयर आर टू डेफिनेशन फॉर मॉडुलस एक्स। व्हाट इज the first before giving the definition of mod x, now we should understand what is the modulus function, what is mod। एक्चुअली में mod होता क्या है, तो mod is just like a machine। mod एक मशीन है which can convert any number, ठीक है, which can convert any negative number into positive number। if there are positive number inside this modulus, it will leave it as it is, means
अगर कोई भी मॉडुलस क्या टाइप की मशीन है, मॉडुलस क्या टाइप का मशीन है, अगर कोई भी उसके अंदर जो नंबर है, जो उसके अंदर क्या है नंबर है, तो मॉडुलस किसी भी नंबर को बनाने का काम करती है, नॉन नेगेटिव बनाने का काम करती है। अब क्वेश्चन होता है नॉन नेगेटिव क्या होता है? नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है, या तो वो जीरो बनाने का काम करेगी या पॉजिटिव बनाने का काम करेगी, ठीक है। या तो वो क्या करेगी, वैल्यू को जीरो बनाएगी या हमेशा क्या बनाएगी, पॉजिटिव बनाएगी। तो यहाँ पे जैसे 3 है तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो क्या हमें इसे और पॉजिटिव बनाने की रिक्वायरमेंट है? तो नहीं, हमें इसे और पॉजिटिव बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मॉड इसे एज इट इज़ यहाँ से हटा देगा, एज इट इज़ इसे यहाँ से छोड़ देगा। तो यानी कि मॉड 3 है तो ये 3 आ जाएगा। बट अगर इसके अंदर नेगेटिव नंबर है, लेट सपोज देयर इज अ नेगेटिव नंबर इनसाइड अ मॉडुलस, सो हाउ मॉड इज गोइंग टू मेक इट पॉजिटिव, मॉड इसे पॉजिटिव कैसे बनाएगा? तो मॉड अगर -3 को पॉजिटिव बनाना चाहता है तो वो उसे ऐसे नहीं छोड़ेगा, वो क्या करेगा, उसे इसे एक माइनस साइन और दे देगा, क्योंकि मॉडुलस का काम होता है नॉन नेगेटिव बनाना। अब वो -3 को नॉन नेगेटिव बनाने के लिए 8 माइनस और दे देता है। क्यों 8 और माइनस क्यों दिया? क्योंकि ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाए और दिस वैल्यू विल बिकम 3। ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। तो मॉड 3 आया, मॉडुलस ऑफ -3 भी कितना आया है, 3 आ गया है। तो ये पॉइंट आपको समझने वाला था। तो ये आपने समझ लिया कि वो नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करता है, 8 माइनस साइन देके। अब पॉजिटिव को कन्वर्ट कैसे करेगा, पॉजिटिव तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो वी डोंट नीड टू मेक इट मोर पॉजिटिव, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो मॉड उसे एज इट इज बाहर पुट कर देता है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन वाइज? तो डेफिनेशन वाइज हम कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर द डेफिनेशन वाइज y इज इक्वल टू मॉड x, यहाँ पे क्या दिया है, y इज इक्वल टू मॉड x, इट इज गिवन हियर। तो y इज इक्वल टू मॉड x दिया है, तो हम इसका ग्राफ के लिए हम करेंगे इफ x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x क्या है, पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 मीन्स यानी कि आप जानते हो किसी भी ग्राफ में राइट साइड ऑफ द y एक्सिस, ये क्या होता है, यहाँ पे x की वैल्यू में क्या आती है, यहाँ पे पॉजिटिव आती है, और लेफ्ट साइड ऑफ द y एक्सिस यहाँ पे क्या आता है, x की वैल्यू नेगेटिव आती है। x एक्सिस के अबव जो y की वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है, और यहाँ नीचे y की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। तो यहाँ नीचे तो y नेगेटिव होता है, x एक्सिस के ऊपर y इज अ पॉजिटिव वैल्यू। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द y एक्सिस द x वैल्यू आर नेगेटिव, एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द y एक्सिस द x वैल्यूज आर पॉजिटिव। तो इफ x ग्रेटर देन 0 मीन्स वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो मॉड उसे एज इट इज बाहर पुट कर देगा। दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू मॉड x इज इक्वल्स टू x। इफ x लेस देन 0, यदि x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, तो मॉड क्या करता है, मॉड एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कैसे बनाता है, तो मैंने बताया था वो नेगेटिव नंबर को क्या पॉजिटिव कैसे करेगा, वो उसे एक माइनस साइन दे देता है। तो वी विल जस्ट पुट अ माइनस साइन हियर, so we are going to just put a minus sign here. So so there are two definition of this function. It x है when x greater than 0, when x less than 0 then the definition is minus x. Now the question what is the question here कि where we are going to put equality sign, equality का साइन हम कहाँ पे लें? तो क्वेश्चन हम पे ये है, ऊपर लें या नीचे वाले पे लें, तो हमारी मर्जी होती है wherever we want to, ठीक है, जहाँ पे हम चाहते हैं वहाँ पे इक्वालिटी का साइन पुट करते हैं। बट इन द मैक्सिमम बुक यू विल सी दे पुट द इक्वालिटी साइन हियर, सो वी आर गोइंग टू पुट अ इक्वालिटी साइन हियर। तो हमने यहाँ पे इक्वालिटी का साइन कहाँ पे पुट कर लिया है, यहाँ पे पुट कर लिया है। तो y इज इक्वल टू मॉड x, हमने ये ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, मतलब ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, या हमने पहले इसका डेफिनेशन देखा। तो डेफिनेशन वाइज हम क्या करेंगे, अब इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए हमने पहले क्या बनाया, एक y एक्सिस बना दी, एक x एक्सिस बना दिया, ठीक है। अब ये तो हमने बना दिया है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ड्रॉ कैसे करें हम। तो पहले तुम y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करोगे, ये मैंने अभी ऊपर बताया था। y इक्वल टू x लाइन तुमने ड्रॉ की समथिंग, ये बनेगा ऐसे, ये बना समथिंग, ये बनेगा ऐसे, ये लाइन बनी ऐसे समथिंग ऐसे, ओके। अब आपने क्या किया यहाँ पे, इसको इस साइड क्यों नहीं बढ़ाया, यहाँ नीचे क्यों नहीं बढ़ाया इसे, तो नीचे हम इसे हॉट ड्रॉ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि डेफिनेशन कहता है ये वाला ग्राफ तभी ड्रॉ करोगे जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। मतलब x ग्रेटर देन 0 तो इस साइड होता है ना, राइट हैंड साइड में, तो हम ग्राफ केवल राइट हैंड साइड में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इक्वालिटी लाई कर रही थी, इसलिए यहाँ पे 0 पे भी ग्राफ ड्रॉ होगा, तो इतना है।
अब क्वेश्चन ये उठा कि y इक्वल टू माइनस एक्स, तो फॉर द टाइम बीइंग तुम समझो जो y इक्वल टू माइनस एक्स है उसका ग्राफ ऐसे बनता है। अभी हम सीखेंगे कैसे बना, लेकिन अभी तुम समझो ये ग्राफ होता है ये वाला माइनस एक्स का। तो ये कहाँ पे वैलिड है, ये वैलिड है व्हेन x लेस देन 0, यानी कि x लेस देन 0 के लिए ये ग्राफ वैलिड है। तो ये बना दिया भाई हमने, कहाँ तक, यहाँ, क्योंकि यहाँ पे x लेस देन 0 होता है ना, तो इस साइड हमने ग्राफ केवल इतना प्लॉट किया। तो जो तुम्हारा फाइनल ग्राफ आया है, जो तुम्हारा क्या हुआ है, फाइनल ग्राफ ड्रॉ हुआ है मॉड एक्स का, तो वो क्या है तुम्हारा, वो ये y इक्वल टू मॉड एक्स, किसी ने पूछा तो ये ग्राफ होता है v से, ये ग्राफ है, इन दोनों के ग्राफ को ही क्या बोलेंगे, y इक्वल टू मॉड एक्स कहेंगे। y इक्वल टू क्या कहा जाता है, इसे मॉड एक्स कहा जाता है। अब यहाँ पे ये तो हो गया कि ये y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है, बट ये पूरा ग्राफ y इक्वल टू मॉड एक्स है, बट जो इसका डेफिनेशन है इस वाले का वो है y इक्वल टू x, और जो इसका डेफिनेशन है y इक्वल टू माइनस एक्स, इस वाले का डेफिनेशन इतना है। तो यहाँ तक तो हमने मॉडुलस के बारे में समझा। अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट आपको समझना है वो ये है कि मॉडुलस समझने के बाद हम यहाँ पे आते हैं कि व्हाट इज द डोमेन। डोमेन मीन्स x की कौन कौन सी वैल्यू अलाउड है, यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यूएं अलाउड है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यूएं अलाउड है, x देखना है यहाँ पे, कोई सा भी रियल नंबर डाल दो, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है, तो यहाँ पे x की हर वैल्यू में अलाउड है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है ना, तो 0 के ऊपर की सारी वैल्यू अलाउड है। और यहाँ पे x लेस देन 0 लिखा है, मतलब x 0 से नीचे सारी वैल्यू अलाउड है, तो इसका जो डोमेन हो जाता है, तो डोमेन ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन दैट इज r। तो डोमेन कितना हो गया इसका, डोमेन ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन, इसका जो डोमेन हो गया, मतलब x की वैल्यू वो कितनी हो गई, r हो गई, रियल नंबर। अब आ जाएगी रेंज, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज मतलब y की कौन कौन सी वैल्यू है। तो जैसे ग्राफ में दिखाई दे रहा है, तुम्हें x एक्सिस के नीचे ग्राफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो y की वैल्यू नेगेटिव तो होंगी नहीं, क्योंकि ग्राफ x एक्सिस के नीचे नहीं है, तो y की नेगेटिव वैल्यू तो अलाउड नहीं है। क्या 0 अलाउड है, हाँ 0 अलाउड है, क्योंकि देखो 0 तो टच किया है, y एक्सिस तो टच कर रहा है ना वहाँ पे, तो 0 तो अलाउड है। और उसके ऊपर ग्राफ है, x एक्सिस के ऊपर हर पॉइंट पे ग्राफ मिल रहा है आपको, तो y की सारी वैल्यूएं अलाउड है, यानी कि x एक्सिस के ऊपर y की सारी वैल्यू अलाउड है, क्योंकि वो ऑब्टेन किए जा सकती हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका जो रेंज आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे ओपन लेते हैं, इन्फिनिटी पे हम हमेशा कौन सा साइन एज्यूम करते हैं, इन्फिनिटी पे लेते हैं, यानी कि बाय डिफॉल्ट ही हम यहाँ पे ओपन ले लेते हैं, ठीक है। आप ये करोगे तभी भी इन्फिनिटी दिखाई देता है, तो जस्ट उस पर ओपन साइन पुट करना है। इसके बाद आ जाते हैं हम, ये तो पढ़ा हमने रेंज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसमें, इसके बाद जो हम पे थर्ड ग्राफ है मॉडुलस फंक्शन के बाद, मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप क्या देखो, अभी हम केवल ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद जो ग्राफ है आपका, वो है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बाद कितना कौन सा ग्राफ है आपके पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा छोटे ग्राफ और पढ़ लेते हैं, दैट इज जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद हम ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ेंगे, पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम ऐसे लेंगे a टू द पावर x टाइप, ठीक है। द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स a टू द पावर x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर। तो हियर a इज डिफाइंड फ्रॉम 0 to 1। a कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, a इज डिफाइंड फ्रॉम 0 to 1, और a इज डिफाइंड फॉर ग्रेटर देन 1, और a कहाँ से कहाँ डिफाइन है, 1 से ऊपर डिफाइन है, या a की वैल्यू कहाँ से कहाँ डिफाइन है, a इज डिफाइंड इन 0 to 1 और a इज डिफाइंड ग्रेटर देन 1, इसके लिए a डिफाइन होता है। a इक्वल टू 1 डिफाइन नहीं होता है, a इक्वल टू 1 के लिए ग्राफ डिफाइन नहीं होता है। अब क्वेश्चन उठेगा why this graph is not, why this function is not defined from a is equals to 1। तो this is just simple, for a is equals to 1, a की वैल्यू यदि 1 है तो 1 की पावर कुछ भी कर लो, आंसर 1 आएगा, ओके। फॉर 1 यू विल गेट द आंसर 1। a की किसी वैल्यू के लिए ग्राफ हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल नहीं रहेगा,
ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, इसलिए हम a की वैल्यू 1 पुट नहीं करते हैं। सेकंड केस यहाँ पे a की वैल्यू लेस देन 0, वाई डिडंट वी कंसिडर द वैल्यू लेस देन 0 फॉर a। तो ऐसा इसलिए देखो इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है, अगर हम लेस देन 0 लें, बाई चांस हमने a की वैल्यू -1/2 लिया, a कितना ले लिया -1/2 ले लिया, ठीक है, और x ले लिया हमने हाफ, क्योंकि x तो यहाँ पे रियल नंबर होता है ना, x की वैल्यू ले ली हमने हाफ, तो ये आ जाएगा रूट माइनस हाफ। तो रूट माइनस हाफ रियल नहीं है, दिस इज नॉट अ रियल नंबर। सो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, a की वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, केवल पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, मतलब ना तो 0 लेते हैं ना 1 लेंगे, 0 से 1 के बीच में या मोर देन 1 वैल्यू हम कंसीडर करते हैं। तो अब इसका ग्राफ आ जाएगा, तो इसके भी 2 ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, जब a की वैल्यू बिटवीन 0 to 1 है एंड द अदर केस व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 है। जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे ये दिया है। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे समझो, ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट ग्राफ जो हम ड्रॉ करने वाले हैं दैट इज फॉर y की वैल्यू जो है वो है तुम्हारी 0 से 1 के बीच में है। a की वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में a की वैल्यू ठीक है, a की वैल्यू जो ली हमने 0 से 1 के बीच में ली, तो इसे फिर से बनाने दो। a का वैल्यू जो कंसीडर किया है वो 0 से लेके 1 के बीच में, तो इस टाइम पे जो ग्राफ बनता है वो समथिंग ऐसा बनता है, देखो समथिंग ऐसा, ठीक है, इस टाइम पे जो ग्राफ बनता है ऐसा बनता है। और ये वाला पॉइंट क्या होता है, देखो यहाँ पे ग्राफ ने y एक्सिस को टच किया है, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट होता है 0। यदि a की पावर 0 रखोगे, a की पावर क्या रखोगे 0 रखोगे, तो a की पावर 0 होता है 1। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आए, इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो होते हैं आपके 0,1, x की वैल्यू 0 डाली, y कितना आ गया 1 आ गया। तो ये ग्राफ होता है जब a की वैल्यू 0 to 1 के बीच में है, तो ये ग्राफ है। अब कोई कंसिडर करेगा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ यदि a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, यदि a की वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में, जैसे आप ले लो 0.5 की वैल्यू आपने ली, जैसे ली -2, ठीक है, -2 ली या पहले -3 ले लो, तो इस बात का मतलब समझते हो 0.5 होता है तुम्हारा करीबन 1/2 की पावर जब -3 है तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 3, 2 का पावर 3 कितना होता है 8। तो देखो जब a की वैल्यू 0.5 थी उस समय हमने x लिया था -3, x -3 यहाँ कहीं पर होगा, उस समय y की वैल्यू आ रही 8, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये आता है, अगर मैं इस पर -2 कर देता पावर, तो ये बन जाता 1/4 यानी कि 4। तो जो -2 पे आया वो क्या है 4, तो वैल्यू क्या होती जा रही है, धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। वैसे अगर आप इस पर 0 कर दे तो 0 पे 1 आ गया, फिर यहाँ पे पावर 1 किया तो 1/2 का पावर 1 वो कितना हो जाएगा 0.5, यानी कि वैल्यू धीरे धीरे छोटी होती जाएगी, इसलिए डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक ऐसा फंक्शन है यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि ग्राफ हमेशा क्या हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा है हमेशा डिक्रीज हो रहा है। तो ये था आपका कौन सा ग्राफ, y = a to the power x, ठीक है, y = a to the power x when a is between 0 to 1। बट इफ a की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में हो, आपकी a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1, a की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 हो तो उस टाइम पे ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, फॉर ग्रेटर देन 1 तो ग्राफ शुड बी लाइक दिस। तो ग्राफ कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, फॉर a ग्रेटर देन 1 के लिए ये ग्राफ आएगा। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये फिर 0 पे क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर आपने a to the power x में x के प्लेस पे 0 डाला तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये ग्राफ होता है when a is greater than 1। तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ चलता रहता है, ग्राफ कभी एंड नहीं होता, ये चलता रहता है ऐसे, ठीक है। सो इसकी टेंडेंसी क्या होती है, एक्स एक्सिस तो टच करने की, पर ये कभी टच भी नहीं करता, ठीक है। धीरे धीरे क्या होती रहेगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, इसकी टेंडेंसी होगी टच करे, बट ये कभी भी टच नहीं करता है। ये वाला चीज़ ध्यान देना, ये कभी भी टच नहीं करता है ये ग्राफ कभी भी। अब ये आ गया, जैसे आपने ये तो ड्रॉ कर लिया, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हमने तो इतना तो कर लिया कि a की वैल्यू यहाँ से 0 से 1 के बीच में, या a की वैल्यू मोर देन 1 है,
तो जैसे अगर 2 का पावर h से दिखाना हो या 3 का पावर h से दिखाना है तो सब ग्राफ ऐसे ड्रॉ होंगे 2 टू द पावर h या 3 टू द पावर h। तो मैं थोड़ा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो ये ग्राफ जैसे ड्रॉ होंगे 2 टू द पावर h, 3 टू द पावर h, 4 टू द पावर h। तो इसे हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये ग्राफ हमने कैसे ड्रॉ की। तो लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन हियर। तो हम इसे सही से बनाते हैं जैसे, ठीक है। तो जैसे हमने ये बनाया, फर्स्ट यहाँ पे 90 डिग्री पे बना देते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पे ये समथिंग ऐसा बनेगा। देखो एक वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन ये ड्रॉ कर दिया मैंने। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे हम क्या करेंगे, ये ग्राफ बनाएंगे वो 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x एंड 4 टू द पावर x। ये सारी वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये बनाया, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे ये आ गया समथिंग ऐसा। तो ये हो गया आपका x एक्सिस। तो जैसे ही आपका ये हो गया है x एक्सिस, हमने ग्राफ ड्रॉ किया 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x एंड 4 टू द पावर x। अभी देखना सारे के सारे 0,1 से पास होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना रहे हैं आपका 4 टू द पावर x। तो 4 टू द पावर x ऐसे दिखाई देगा, देखो समथिंग। इसको मैंने बनाया है ग्रीन पेन से बना रहा हूँ मैं इसे, ये दिखाई देगा समथिंग ऐसे 4 टू द पावर x। अब ये आ जाएगा। इसके बाद मैंने बनाया है यहाँ पे, ये था y इक्वल टू 4 टू द पावर x। पहले इसे नोट करने दो, ये कितना है y इक्वल टू 4 टू द पावर x। अब बना रहा हूँ मैं y इक्वल टू द 3 टू द पावर x। 3 टू द पावर x अगर आप बनाओगे, इसके लिए लेते हैं ब्लू कलर, ठीक है। तो y इक्वल टू 3 टू द पावर x बनाओगे तो ये समथिंग ऐसा बनेगा, ठीक है। ये बनेगा, ये ब्लू लाइन यहाँ पे ऊपर हो जाएगी, लेफ्ट साइड में ऊपर हो जाएगी बट राइट साइड में नीचे हो जाएगी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 3 टू द पावर x। आप इसे सोच सकते हो ऐसा हो क्यों रहा है। अब लास्ट में बनाएंगे हम क्या, y इक्वल टू 2 टू द पावर x। तो ये समथिंग, ये सब इसी पॉइंट से पास होंगे, ये ऑल वैल्यूज आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। So y is equals to 2x. This is the graph of y is equals to 2 to the power x. This is the graph of y is equals to 2 to the power x. So this is the difference here from 0,1. All graph is passing through the 0,1. सारे ग्राफ कहाँ से पास हो रहे हैं, 0,1 से पास हो रहे हैं। But in the right hand side, the graph of 4 to the power x, the graph of 3 to the power x, and the graph of 2 to the power x. In the right hand side, the graph of 4 to the power x is above the graph of 3 to the power x, and 3 to the power x is above the graph of 2 to the power x. And in the left hand side is the opposite, just opposite of this. अब ये हो गया। अब आ गया इसका डोमेन क्या हुआ, व्हाट इज द डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। व्हाट इज द डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आप डोमेन यहाँ पे डिनोट कर सकते हो। तो डोमेन मतलब द वैल्यू ऑफ x। तो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन यानी कि द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे देखो ग्राफ फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, हमें ग्राफ हर पॉइंट पे क्या हुआ है, डिफाइन मिला है, मतलब ड्रॉ मिला है। तो इसलिए इसका डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू r। सो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज x बिलोंग्स टू r फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। -इंफिनिटी से +इंफिनिटी में देखो ग्राफ सारा ड्रॉ हुआ है ना। देखो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, दिस ग्राफ इज ड्रॉन फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। इसे बढ़ाते जाओगे तो x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग मतलब एक x का वैल्यू हमें ऑब्टेन होता जाएगा। तो ग्राफ की द डोमेन मीन्स x का वैल्यू, दैट मीन्स द रियल नंबर। इन द केस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज मीन्स y's वैल्यू, ठीक है, द वैल्यू ऑफ y। तो द वैल्यू ऑफ y, तो आपको यहाँ पे ग्राफ को देखने पे क्या पता चला, ग्राफ कभी भी x एक्सिस के नीचे नहीं है एंड इट इज नेवर टच इन द x एक्सिस। और ये x एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है। तो ये x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ ये x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x के ऊपर की सारी वैल्यू में कंसीडर करेगा, इवन 0 भी कंसीडर नहीं करेगा। y की वैल्यू 0 भी नहीं होगी। अगर ये x एक्सिस को टच करता तो हम y की वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे, बट ये x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, यानी कि y इक्वल टू 0 तभी ऑब्टेनेबल है ही नहीं। तो यहाँ पे जो इसका वो आ जाएगा रेंज,
वो कितना आ जाएगा, ओपन इंटरवल। आप जीरो पे क्लोज नहीं बनाओगे, क्योंकि क्लोज तब होता जब जीरो ऑब्टेन होता, वाई की वैल्यू जीरो ऑब्टेन होगी, ये कभी नहीं होगी। जीरो से लेके इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूएं ऑब्टेन होगी वाई की। तो रेंज हो गया इसका जीरो टू इन्फिनिटी, जो आपको याद रखना है, और डोमेन हो गया एक्स बिलोंग्स टू आर। इसके अलावा आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो e टू द पावर x मीन्स दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि e की वैल्यू होती है 2.71 अप्रॉक्सीमेट, इसे बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट। इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है विच इज 2.71। तो ध्यान देना y इज इक्वल टू ई टू द पावर x का ग्राफ कौन सा वाला होगा, तो ये वाला होगा, इस टाइप का शेप होगा। इस टाइप का शेप क्यों होगा? क्योंकि e की वैल्यू है 2.71 विच इज ग्रेटर देन 1। अब फॉर ग्रेटर देन 1 यानी कि यदि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो कैसा ग्राफ ड्रॉ होता था, ऐसा। तो e टू द पावर x का जो ग्राफ होगा वो इस टाइप का ड्रॉ होता है। तो ये पढ़ा हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो ग्राफ पढ़ना है हमें, दैट इज अ सिग्नम फंक्शन। ठीक है, इसके बाद जो हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं दैट इज अ सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, तो इन द सिग्नम फंक्शन हम कैसे इसे ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट इन द दिस फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स। तो इन द सिग्नम एक्स इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस ग्राफ, तो फर्स्ट सिग्नम होता क्या है, तो हम डेफिनेशन वाइज लिखेंगे, दिस इज डिफाइंड मॉड एक्स बाई एक्स when x does not equals to 0 and when x is equals to 0 the value is 1, the value is 0। 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बट when the value is not 0, when the value is not 0 then it is defined like this mod x divided by x। तो अब यहाँ पे आप इसे फर्दर देखोगे, if x less than 0, if x less than 0, तो मैंने अभी बताया था इट्स बिफोर, इफ x लेस देन 0 तो मॉड उसे माइनस साइन के साथ बाहर करेगा, तो वो हो जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स विच इज -1। अब दूसरा केस था x 0 है तो द वैल्यू इज 0। व्हेन x ग्रेटर देन 0, व्हेन द वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 0 देन द मॉड क्या करेगा, इसे एज इट इज बाहर छोड़ देगा, देन दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, ये एज इट इज x आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई x विच इज 1। तो यहाँ पे इसके 3 डेफिनेशन आए। तो कभी भी आपसे सिग्नम फंक्शन का ग्राफ पूछे देन यू विल कंसीडर ओनली 3 वैल्यू। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आई है वो 3 वैल्यू आई हैं विच इज -1, 0 और 1। -1 कब डिफाइन है, व्हेन x लेस देन 0, 0 कब डिफाइन है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, और 1 कब डिफाइन है, व्हेन x ग्रेटर देन 0। जब आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखोगे तो आप हमेशा क्या दोगे, एक आंसर दोगे 1। तो अब यहाँ पे हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बनाया यहाँ पे ग्राफ, एक बना दिया y एक्सिस, यहाँ पे क्या बना दिया, x एक्सिस बना दिया हमने, ये है x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, ये बना दिया। अब यहाँ पे यदि x ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ क्या है, 1। तो y इक्वल टू x वाली लाइन क्या बनाई आपने, सबसे पहले बनाई, फिर 8y इक्वल टू -1 वाली लाइन आपने ड्रॉ कर दी, तो वो ये हो जाता है। ये आपने फर्स्ट ग्राफ पढ़ा था। y इक्वल टू 0 है तो 8 वैल्यू 0 पे 0 बनाया। अब यहाँ पे जो समझने वाला पॉइंट है वो ध्यान से समझना है आपको, x ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला डेफिनेशन कब डिफाइंड है, x ग्रेटर देन 0 है तो वहाँ पे 1 आ रही है वैल्यू, तो 1 वाला जो ग्राफ बनाया है ये कहाँ पे डिफाइंड है, केवल x ग्रेटर देन 0 पे। तो फॉर x ग्रेटर देन 0 इट इज डिफाइंड, बट लेस देन 0 पे डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये वाला पोर्शन हमने हटा दिया। इवन ये 0 पे भी डिफाइंड नहीं है। तो इफ इट इज नॉट डिफाइंड ऑन 0 तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी विल पुट अ ओपन साइन हियर। ठीक है, यहाँ पे हम इसे क्लोज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक ओपन होल पुट कर लेंगे, बिकॉज द इक्वालिटी यहाँ पे क्या नहीं है, 0 पे इक्वालिटी नहीं है, देयर इज नो इक्वालिटी ऑन x ग्रेटर देन 0, सो वी विल पुट अ होल हियर। ठीक है, यहाँ पे हम एक होल क्रिएट करेंगे। सेम वे दिस डेफिनेशन इज डिफाइंड ऑन the same way the definition y is equals to -1 is defined for x less than 0. The definition is defined for x less than 0. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला डेफिनेशन जो -1 वाला है ये किसके लिए डिफाइन है, जो -1 वाला ग्राफ हमने ड्रॉ किया है ये x लेस देन 0 के लिए डिफाइन है।
तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस वाले वैल्यू को हटा रहा हूँ और यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे ओपन पुट किया मैंने, यहाँ पे एक होल क्रिएट कर दिया, यहाँ पे क्या रखा, यहाँ पे आप फिल नहीं करोगे, इस सर्कल को फिल नहीं करोगे, इसे ओपन रखोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है, एक्स लेस देन 0 पे इक्वालिटी होल्ड नहीं की है। तो -1 का डेफिनेशन एक्स लेस देन 0 वाली वैल्यू के लिए, और y इक्वल्स टू 1 वाला डेफिनेशन फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए है, और x इक्वल्स टू 0 पे 0 आया है। तो ये दिस इज द ग्राफ ऑफ, जो ये ग्राफ आपने ड्रॉ किया, दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। ठीक है, यानी कि आपको क्या पता चला, तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन मीन x बिलोंग, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा r क्यों आया, देखो x लेस देन 0 के लिए भी डिफाइंड है, x इक्वल्स टू 0 पे भी डिफाइंड है, x ग्रेटर देन 0 पे भी डिफाइंड है, तो x की हर वैल्यू पे डिफाइंड है। सो द डोमेन ऑफ दिस सिग्नम फंक्शन इज r। व्हाट इज, सेकंड पॉइंट यहाँ पे है, तो डोमेन को इसका r हो गया, ये तो हमने मान लिया। व्हाट इज द रेंज ऑफ, तो आप देखो रेंज की 3 वैल्यू आई हैं केवल, हर बार x लेस देन 0 के लिए -1 आया, हर बार हमें y की वैल्यू है तो 0 ऑब्टेन हुई है या 1 ऑब्टेन हुई है, इसके अलावा हमें कोई अदर वैल्यू ऑब्टेन नहीं हुआ है। तो रेंज में केवल 3 आएगा, -1, 0 एंड 1। तो रेंज के कौन सी वैल्यू पार्ट हो जाएंगे, 3 पार्ट आ जाएंगे, -1, 0 और 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिग्नम फंक्शन, हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो इसके अलावा सिग्नम फंक्शन में आप एक चीज़ और ध्यान देना, यदि किसी ने आपसे कह दिया कि मुझे सिग्नम 2 की वैल्यू बताओ, तो आप सिग्नम 2 की वैल्यू आप बता सकते हो, सिग्नम 2 की वैल्यू बता सकते हो। अब एक ऐसी वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 1। किसी ने पूछा मुझे सिग्नम ए की वैल्यू बता दो, तो आप बताओगे ये भी 1 होगी, क्योंकि ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। किसी ने बोला मुझे सिग्नम 0 की वैल्यू बताओ, ठीक है, तो सिग्नम 0 की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। किसी ने बोला सिग्नम -2 की वैल्यू बताओ, तो ये कितनी आ जाएगी, ये -1 आ जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। ये आ कहाँ से रहा है, ये आ रहा है ऊपर से। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो उसके आर्ग्यूमेंट में लिखा है, सिग्नम के आर्ग्यूमेंट में कितना है, 2 है, ये ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू 1 है, ये e भी ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू 1 है। सिग्नम के आर्ग्यूमेंट में अगर नेगेटिव नंबर है तो वैल्यू -1 है। ये हो गया। अब किसी ने कहा कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, सिग्नम x², ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, सिग्नम x²। तो सिंपल है, यू कैन ड्रॉ दिस ग्राफ सिग्नम x²। कैसे ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे, तो सबसे पहले डेफिनेशन, क्या कभी x² नेगेटिव हो सकता है, पहले ये सोचो, नहीं। x² क्या होता है, या तो 0 होगा या हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सिग्नम x² के 2 वैल्यू आएंगी, या तो 1 आएगा या 0 आएगा, क्योंकि x² कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, x² कभी नेगेटिव नहीं होता है, x² क्या होता है, हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, या तो वो 0 आएगा या x² हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। आप कोई सी भी वैल्यू उसमें पुट कर लो, x² हमेशा क्या आता है, या तो पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा। तो पॉजिटिव कब आएगा, वो x की हर वैल्यू पे व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 0। जब x 0 नहीं है तो हमेशा y की वैल्यू कितना देगा, 1 आएगा, मतलब सिग्नम x² हमेशा पॉजिटिव आएगा, x² पॉजिटिव आएगा जब x 0 नहीं है। तो उस टाइम पे सिग्नम कौन सी वैल्यू देगा, 1। और जब x 0 है तो यहाँ पे आर्गुमेंट में 0 बन जाएगा, तो सिग्नम का आर्गुमेंट में 0 है तो सिग्नम क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा। तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो आप इसका ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ करोगे इसका सिग्नम x² का ग्राफ, तो सिंपल है, जब x 0 नहीं है, तो 0 नहीं है मतलब ये वाला नहीं है, तो y कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपका ग्राफ जो बनेगा ऐसा बनेगा। जब क्या है, ये x 0 नहीं है, तो x 0 कहाँ पे नहीं होता है, ओरिजिन को छोड़ के कहीं पे भी 0 नहीं होता है। 0 पे क्या है, वैल्यू 0 आया है, तो 0 पे 0 आया है तो मतलब ये वाला है। तो ये ग्राफ है आपका सिग्नम x² का ग्राफ। तो यहाँ पे हमने सीखा सिग्नम x, उसका डोमेन होता है उसका r, और उसका रेंज कितना होता है, तो रेंज हो गया उसका यहाँ पे सिग्नम फंक्शन का जो रेंज हुआ यहाँ पे वो 3 वैल्यू लेता है, -1, 0, 1। तो सिग्नम x की बात चल रही है, सिग्नम x² के लिए रेंज क्या हो जाएगा, 0, 1। तो ये आपको समझना है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया सिग्नम फंक्शन। जो ये पार्ट फर्स्ट था आपका, पार्ट फर्स्ट में हमने कौन कौन से ग्राफ डिस्कस किए, एक तो कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ हमने डिस्कस किया है, इसके अलावा हमने यहाँ पे कौन सा मॉडुलस फंक्शन डिस्कस किया है हमने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हमने यहाँ पे क्या किया है, डिस्कस किया है। और अगर हमने कौन से ग्राफ यहाँ पे डिस्कस किए हैं हमने, हाँ, एक तो हमने a टू द एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया है।
अब इन द पार्ट सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और इसके अलावा लॉगरिथमिक फंक्शन, इसे हम करेंगे हम ग्राफ 2 में कंप्लीट। तो यहाँ पे इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। द सेकेंड पार्ट में हम इन द सेकेंड पार्ट वी विल कवर अदर फंक्शन ग्राफ जो रह गए हैं, उन फंक्शन के ग्राफ हम डिस्कस करने वाले हैं।